मौजूदा हालत में अगर देखा जाए तो हम अपने आसपास कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सदस्य या फिर विकासकों को कई समस्याओं का सामना जीएसटी, टीडीएस या फिर नई इमारतों की निर्माणाधीन समय में आ रही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जिसके चलते सभी लोग मिलकर निर्माणाधीन इमारत का प्रोजेक्ट पूरा कर सके। पुलिस से लेकर महानगर पालिका और आर्किटेक्ट से लेकर जिलाधिकारी तक सभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को कई बार अंधेरे में रखा जाता है। उनकी यही समस्या जानकर गोरवा अर्थात गोरेगांव रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में गोरेगांव पूर्व में प्रज्ञाबोधिनी स्कूल में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। गोरवा के अध्यक्ष नितेश जाधव और उनके कार्यकारिणी सदस्य ने इस चर्चा सत्र का आयोजन किया, जिसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के न्याय और हक के लिए लड़ने वाले एडवोकेट अमित मेहता, हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश दरेकर भी शामिल हुए और इस चर्चा सत्र में शामिल हुए लोगों की शंकाओं का निरसन किया। आइए देखते इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। Questions in advance, so I thought I'll just carry the questions. One of the questions we got: what are the GST calculations and stamp duty payable in a society? Now, what are the things that are considered as the factors? Factors क्या क्या मैं तुम्हें समझाऊँ? Market value of property. What is the market value? Then the type of the property. म्हणजे G plus how many floors? G plus how many floors? The property use काय आहे? म्हणजे whether it is residential or commercial. म्हणजे the application of GST is different for commercial and different for residential. आणि location म्हणजे गोरेगावमध्ये different rate असेल, at other places may be different. Navi Mumbai, we go out of, the different rates will be applicable. Rural areas. आणि in urban areas it is 5%. And now there is a 1% of the property's total market which is payable after the new this has come, budget has come. But as far as the registration is concerned, it is either 30,000 maximum registration cost or 1%. That's the maximum payable. Now let me come, I will tell you the circular. There is a circular which has come on 22nd of July 2019. I will request Nitesh, many members would like to have the circular of GST which has come. They can circulate to members of the society. या सर्क्युलर मध्ये काय लिहिलं तुम्हाला सांगतो मी. If the maintenance is above rupees 7,500, 18% GST is applicable. However, you have to reduce the property tax amount. If you reduce this and the figure goes below 7,500, it is not applicable. That's the flat 18%. कंप्लायन्स वगैरे आहे. सोसायटी व्हायच्या अगोदर जो पिरियड असतो, वर्ष 2 वर्ष, मोठी बिल्डिंग असेल समजा 300 फ्लॅट्स आहेत, पण सोसायटी व्हायला अजून वेळ आहे, 6 महिने, वर्षभर. आपली इच्छा असते लगेच व्हायला पाहिजे, पण तोपर्यंत इज इट मॅन्डेटरी टू फॉलो दी मॉडल बायलॉज? नंबर 1. नंबर 2, The answer is no. The answer is no. Number 2, what is the implication after the society is formed and if you see the violations are happening for the bylaws? Okay, but there is a very big catch here. See, some questions are so good that there is a case which I always remember correlated to that case, to the subject also. Okay, a building is redeveloped. Prakash, खूप important matter आहे की गोरेगावमध्ये झालेलं आहे. Invest. I'm not naming developer again. I'll start naming developers. All will come behind me now. This developer, he developed the building. He did not apply for OC. How many years? 2 years. And he told the members, तुमचं काय एरिया किती आहे? 700 आहे ना, ठीक आहे. डक्ट एरिया आहे ना, ते 50 स्क्वेअर फीट आहे. ड्राय एरिया ते 100 स्क्वेअर आहे. एन्क्लोज करून टाका. ओके, पण 150 स्क्वेअर फीट एक्स्ट्रा मिळेल. म्हणजे माझं 600 स्क्वेअर फीट घर झाले 750. आय एम थिंकिंग व्हॅल्युएशन किती वाढली फ्री मध्ये, 150 स्क्वेअर फीट वाढले. दिस बिल्डिंग नेव्हर गॉट ओसी because what the developer did, he wanted to save is that 50 lakhs or whatever that amount is for OC, for obtaining the OC. He told members, you take the encroach area, you have no problem, take, no problem. म्हणजे आता त्या बिल्डिंग मध्ये काहीतरी 78 फ्लॅट्स आहे. Demolish all these places, bring into original position, and then you will be eligible for OC.
So the stage today is like this in that building, that we have to take out a demolition of all the flats of their 150 square feet or 100 square feet. And after that they will be eligible for OC. So remember this, कि between that period when the society is not formed, but the building is ready, please alert all your members how the traps happen. For further details, जब सेल्फ रीडेवलपमेंट करने का होगा तो आर्किटेक्ट चंद्रशेखर प्रभु है और मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग बैंक के उदय दलवी करके वो आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए करना नहीं करना है वो बाद में सोचो, सब मेंबर को एक साथ बिठा के उनका मीटिंग लो, बाद में अपन क्योंकि सत्य इसमें जो टाइम नहीं मगर बात करने के लिए उनके पास बहुत राय है। ऐसे बहुत से प्रश्न तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बोरीवली सेक्शन में आप काटा रोड नंबर 4 बोरीवली ईस्ट वहाँ भी कोई कैंप लगा सकते हो और ये ज्ञानियों को ज्ञान दो जो कि जो बाद में देते हैं उन्हें समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। एक शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये सीरीज के बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा एक मीटिंग शायद गोरेगांव वेस्ट में, क्योंकि ऐसे काफ़ी बिल्डिंग्स हैं पांडुरंगाड़ी, जयप्रकाश नगर और मेरे ख्याल से कैसे उसको फाइनेंस कर सकता है। कुछ ऐसी सोसाइटीज जिन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट किया हुआ है उनको बुला के उनके अनुभव लोगों के सामने रखेंगे और गोरवा के माध्यम से हम किस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे जयप्रकाश नगर हो, पांडुरंगवाड़ी, अमृतवन, यशोधर, फिर अगर वेस्ट में जाओ तो जवाहर नगर, ऐसे बहुत सारे विभाग गोरेगांव में हैं जो शायद 40-50 या उससे भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं बिल्डिंगें उनकी। और ये समस्या है क्योंकि छोटी सोसाइटीज है, एरिया छोटे हैं, बिल्डर के पास जाके शायद उनको फायदा नहीं हो सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में शायद 2 या 3 महीने बाद इसके ऊपर हम एक इसी प्रकार की एक बड़े मीटिंग की आयोजन करेंगे। तो सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे हम डिटेल लिया है। सारे के सारे परचेसर जब तक एग्रीमेंट और मेंबर नहीं बनते, एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तब तक आपको मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। ये कहाँ तक सच है? वो कहते हैं हर एक को मेंबर बनना पड़ेगा। हर एक मेंबर बनने जब तक नहीं बनेंगे तब तक, मतलब इंडिविजुअली बॉन्ड नहीं देंगे तब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये कहाँ तक सच है? एक तस्वीर ऐसे प्रोजेक्ट है जब मैं ही लॉयर हूँ, केस मैंने ही किया था, डेवलपर 6 महीने जेल में था, बाद में प्रोजेक्ट बना फाइनली जेल में जाने के बाद। अभी ये ही इज फ्रॉम द सेल कंपोनेंट। अभी ऐसा है कि सेल कंपोनेंट वाले को मेंबर तो बनना ही पड़ेगा सोसाइटी में, इट इज मैंडेटरी, नहीं तो हाउ विल दे रन द अफेयर्स। अभी लिफ्ट होता है, सिक्योरिटी गार्ड है, कॉमन एमिनिटीज है, गार्डन है, जो भी कॉमन एमिनिटीज है, जो सर्वेंट से काम करते हैं, क्लीनर है, स्वीपर है। तो जब तक आप मेंबर बनोगे नहीं, आपको शेयर मिलेगा नहीं, और जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, इट विल नॉट हेल्प द सोसाइटी। यस, तो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ओके। एंड वन मोर थिंग, एक बार वो प्रोजेक्ट चालू होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर हिम टू गो एंड रजिस्टर इन द फर्स्ट डेट ओनली। He can register after 6 months only. But the moment he starts the sale of the flats, before that he has to register. So almost 13 years back, हम लोग का खोलने रखा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 13 years पहले, वो तो फिर एरा में ही है। Complaint in RERA also. They wrote a letter to SRA and that's all. After that I made several complaints to RERA and to SRA, but nothing happened. नहीं, अगर सेल में सेल चालू हुआ है क्या उसका सेल वो सारा कर चुका है पहले ही। नहीं, when he did it, I have that. It is a standstill. Then he has to do before selling now. Yeah. थैंक यू। पांडुरंगवाड़ी से क्या क्लस्टर डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो पांडुरंगवाड़ी से point is there is a concern about going to the heights, and another topic is we have only 8 tenants and many of the shops at the ground floor, so this is a tricky issue to proceed for the development. So what are the possibilities how to? Are there around you? There are a couple of things. So a couple of meetings are there. You all can have a joint meeting, form a federation. Normally what we recommend, if the people are on the similar area and they can be amalgamated also in future. So all this cooperative housing society, they can first form a federation or association. Okay, once that is formed, okay, you become apex body, and the apex body then negotiates for a cluster development. The benefit of cluster development is humongous. You get extra FSI, you get good amenities, you get clubhouse, swimming pool, temples, what religious places you want,
and plus you get a jogging track, you get a place to visit down, See, there are a lot of, benefits, but there's a big challenge. अब एक ही सोसाइटी में 10 जन का जमता नहीं है, तो 10 सोसाइटी साथ में आए तो कैसे जमने वाले? This is a big challenge. I mean, actually, it's a big challenge. I know in Warsaw where so many buildings have come together, but अभी तक they have not come to consensus of appointing a PMC. हर एक को अपना PMC चाहिए, कोई को अपना lawyer चाहिए, कोई को अपना developer चाहिए. So it's a big challenge. But if you're able to do it, nothing like it. If you're able to bring the apex point together, then you can do it. The loading has to happen first in the name of the society, mandatory. The DDL has to be named in the society only, and before obtaining the CC. So many developers do it at the time of IOD also, but before CC it has to be done. So the society is safeguarded because once the DDL is loaded, that means the developer has spent crores of rupees in loading the DDR, and that is how the society safeguards itself in case it has to replace it with the bank guarantee sometimes. अमित जी के सामने अमित जी का एश्योरेंस लेता हूँ इस बारे में, ये सारे सवालों का रिटर्न में आप तक जवाब पहुंचाऊंगा, और हो सकता है तो कुछ मीटिंग्स की वक्त लेके जो डिटेल अगर कोई सब्जेक्ट है, किसी को अगर डिटेल मार्गदर्शन चाहिए तो हम लोग अलग से उसके लिए स्पेसिफिकली मीटिंग भी प्लान करेंगे। एक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हमारे यहाँ पे जुल्किफ जी प्रेजेंट है। हमने गोरवा के माध्यम से एक्मे में सोसाइटी में वेट वेस्ट कंपोस्टिंग, क्योंकि सारी सोसाइटीज को आपको पता होगा, बोला जा रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए, तो एक हमने बहुत ही ट्रेडिशनली कंपोस्टिंग कैसे होना चाहिए उसका प्रोजेक्ट एक्मे हमें FGH में गोरवा ने 1.5 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था। 1.5 साल से यानी बारिश में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉपरली चल रहा है। उसको BMC के ऑफिसर्स ने खुद आके देखा, रिकग्नाइज किया, एंड दे सर्टिफाइड दैट यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। एंड पूरे गोरेगांव में जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट रन करता है वेट वेस्ट कंपोस्टिंग, जो गीला कचरे का कंपोस्टिंग, उसके लिए कंसेशन के लिए जो आपका प्रॉपर्टी चार्जेस वगैरह जो BMC कलेक्ट करती है उसका कंसेशन का जो प्रावधान है, उसमें मुझे बोलने के लिए गर्व होता है कि उस सोसाइटी को BMC ने खुद कंसिडर किया है कि उसको कैसे कंसेशन दिया जाए। तो उस तरह से आप लोगों को अगर किसी सोसाइटीज में वेट वेस्ट कंपोस्टिंग की हमने बहुत उस चीज़ को लेके सफाई की है, अगर किसी को करना है तो वो गोरवा को संपर्क कर सकते हैं।